फीलिंग आ आप रही बेसिकली किस कंट्री से हैं? है। लंदन। आप UK, so Scotland is also the part of UK. It is, Yeah. yes, it And that's why I'm asking this question again and again, that Yusuf Hamza become the Prime Minister of Yeah. Scotland. We have Sadiq Khan actually in London, who's the mayor of London. India's not bad. India is not bad. Why India is not bad? It's a nice country. Would you like to visit? Yeah. जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। मतलब इंडियंस मेहनती हैं, हम मेहनती नहीं हैं। बहुत मेहनती हैं, क्योंकि मैं इंडियंस के साथ मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि वो 12 और 18 घंटे भी काम करते हैं और हम लोग 2 घंटे काम करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. आपका नाम? Ria. रिया, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हमजा यूसुफ बने हैं, जो कि एक मुस्लिम है, पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड है। वो क्या कहना चाहते हैं कि ऋषि सनक एक इंडियन है और स्कॉटलैंड में एक मुस्लिम जा चुके हैं, तो कैसे कंपैरिजन करेंगी दोनों का और कौन आपको बेहतर लग रहा है और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे कांग्रेट करना चाहेंगी? I think that because they're giving more chances for South Asian prime ministers and rulers in authority, it's going to be good for people who want to come in from different countries. Okay. So what is your opinion about Rishi Sunak first of all? As you are from UK, and how he's governing over there? He's okay. He's okay. Why he's okay? I don't know. I don't keep up with politics. Okay, but he won with the majority votes over there. Yeah. I don't know. You don't know why? Okay, but basically he's an Indian. So what's your opinion about India? India's not bad. India is not bad. Why India is not bad? It's a nice country. Would you like to visit? Yeah. When? Because right now you're in Pakistan and you're visiting Pakistan. How is Pakistan actually? It's not bad. It's very nice. Okay. So what about Hamza Yusuf, who is the Muslim Prime Minister of Scotland? As Scotland is the part of UK, so what do you think about the Muslim people over there? I feel like they'll be appreciated and recognized. So you were happy that now a Muslim is also becoming the Prime Ministers of other countries like Indians. They are ruling all over the world right now. Yeah. So what message you want to convey to that Prime Minister right now? Just to give more chances to people from other countries because they might not feel welcome in white countries. Okay. So you are right now in Pakistan. So what's your opinion about right now the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif? I don't know him. You don't know him? Are you Pakistani born? No. You're not Pakistani born. I'm born in Germany. You're born in Germany and you're living in UK and you're visiting Pakistan. Because my parents were born in here. Okay, thank you so much, Riya. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों को काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता बाहर के मुल्कों में। इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट पर भी वही बैठे हुए हैं, लेकिन आज एक मुस्लिम बंदा कह लें आपके, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हैं, उनका नाम है हमजा यूसुफ। क्या कहना चाहते हैं, क्या तासुरात है कि पाकिस्तानियों को भी ऐसे रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं? बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। पाकिस्तान का मुल्क ऊंचा हो रहा है। वो बहुत रिस्पेक्टफुल बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत बड़ी बात है। और या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, आप काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी एक बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हैं। अच्छा, हर वक्त इंडियंस को ही क्यों, मतलब कि आप भी देखते हैं कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर जगह पे इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है। अब जब एक पाकिस्तानी को दी गई है तो इंडियंस का क्या हाल होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल कंट्रीज़। और वो इंडिया को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, पाकिस्तान को। तो आप पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आई हैं? जी। ओके, तो कैसे लगा पाकिस्तान एज अ कल्चर, इनकी हर एक चीज़ आपको कैसी लगी है? एंड स्पेशली बाहर के मुल्कों में जब पाकिस्तानी मिलते हैं एक दूसरे से, तो क्या तासुरात होते हैं? रमज़ान के महीने में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल फीलिंग आ रही है। यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ मैं लिबर्टी में, तो जी बहुत नाइस फीलिंग आ रही आप बेसिकली किस कंट्री से हैं? है। लंदन। आप UK, so Scotland is also the part of UK. It is, Yeah. yes, And that's why I'm asking this question again and again, that Yusuf Hamza become the Prime Minister of Scotland. We have Sadiq Khan actually in London, who's the mayor of London. So when he became the mayor, that we were all really happy as well, because he's Pakistani and he's a mayor. He's got नाम ऊंचा कर रहा है, तो इट्स रियली गुड। या तो हम एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह हमजा यूसुफ नाम ऊंचा कर रहे हैं पाकिस्तान की, इस तरह बाकी मुस्लिम्स को भी चाहिए कि वो भी दूसरे मुल्कों में जाकर अपना नाम रोशन करें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाजिया। शाजिया, क्या करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल तो आराम कर रही हूँ। दैट वाज अ गुड आंसर। ओके मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम्स की स्पेशली, तो हमें बाहर के मुल्कों में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। लेकिन रिसेंटली स्कॉटलैंड के अंदर हमजा यूसुफ एक मुस्लिम हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्या कैसे तासुरात है आपके ये चीज़ सुन के कि पाकिस्तानी भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना स्टार्ट हुए हैं? पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानी अच्छा नहीं समझते, दूसरे लोग क्या अच्छा समझेंगे। ठीक है, पहले तो हमें खुद समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को सही समझे। जब तक हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, हमारी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। और जहाँ तक स्कॉटलैंड की आप बात करें, आप गैप देखें और डिफरेंस देखें। ठीक है, मुल्कों के दरमियान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कल्चर में डिफरेंस देखें। ठीक है, उनके सारी एथिक्स में देखें, हर चीज़ में देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन में देखें। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ से भी बेशुमार अच्छे लोग निकलेंगे जो लीडर बन सकते हैं। Exactly, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, हर जगह पे हमें इंडियंस ही पहले नजर आते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको सुन के कि मुस्लिम एक प्राइम मिनिस्टर बन गया स्कॉटलैंड के? अच्छा तो बहुत लगता है, और उससे ज़्यादा अच्छा लगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे मुल्क में भी हो। तो एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्यों ऐसा होता है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों से पहले बाजी मार के ले जाते हैं? देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। मतलब इंडियंस मेहनती हैं, हम मेहनती नहीं हैं? बहुत मेहनती हैं, क्योंकि मैं इंडियंस के साथ मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि वो 12 और 18 घंटे भी काम करते हैं और हम लोग 2 घंटे काम करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बात बिल्कुल आपने सही किया है कि हम बहुत ज़्यादा लेजी कौम है, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और उनकी कौम देखिए किस तरह से आगे गई है। आज CEOs देखें कि कितने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, और हम इस बात पर खुश हो गए हैं कि चले स्कॉटलैंड का भी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम पाकिस्तानी बन गए। हालांकि हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो वहाँ बन गया, सारी दुनिया में भी अगर कोई बन रहा है तो अपनी मेहनत की वजह से बन रहा है, वो पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं बन रहा। ठीक है, वो अपनी मेहनत की वजह से। ऐसी बात, उन्होंने इतनी मेहनत किया, इतनी स्ट्रगल किया। उन्होंने कहा है कि 60 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स थे वो गए थे स्कॉटलैंड, उनको इंग्लिश का एक लफ्ज़ तक बोलना नहीं आता था, लेकिन आज मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया और मैं स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठ गया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी मेहनत की वजह से है। तो हम सिर्फ खुश हो सकते हैं कि हाँ, दुनिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर या बड़े बड़े ओहदों पे जो है वो मुसलमान या पाकिस्तानी आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें से किसी भी के ऊपर भी हम लोग उनके उसूलों पे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। थैंक यू सो मच मैम गोपिन कला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वाजिद। वाजिद, मेरा आज का सवाल ये कि हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। रिसेंटली बात करें 29 मार्च को, तो एक मुस्लिम पर्सन है जिनका नाम है हमजा यूसुफ, उनको स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या कहना चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी अपना एक लेवल, एक मेयार बना रहे हैं? देखें जी, इट्स गुड कि उनको मतलब बनाया गया, लेकिन ये उसकी पर्सनल मेहनत है। इससे इस चीज़ को इन्फर करना कि इस वजह से पूरे पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिलेगी, ये बात ठीक नहीं है। हमारी रेपुटेशन, हम हर बंदे की अपनी रेपुटेशन खुद बनाता है, और पाकिस्तानियों ने अपनी रेपुटेशन खुद ख़राब की है। आप कोई भी काम देख लें, ये बाइनेंस और हर चीज़ में इन्होंने ऑनलाइन जितने ई-कॉमर्स का इतना बड़ा बिजनेस है, अमेज़ॉन का काम चला है, लोग उसमें भी 2 नंबरियाँ करना शुरू हो गए। तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना ही कसूर है। हम शॉर्टकट्स देखते हैं और शॉर्टकट्स दुनिया मानती नहीं। हम शॉर्टकट्स तो देखते तो हैं, लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, जैसे कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद कमाला हैरिस की बात की जाए तो वो उसकी USA की प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर उनके काफ़ी CEOs हैं जो कि स्टारबक्स में नज़र आते हैं, ट्विटर में नज़र आते हैं, हर एक चीज़ में नज़र आते हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप? तो फिर इंडियंस भी तो काफ़ी ज़्यादा, फिर आपको कहने का मतलब ये कि वो पूरी नेशन को प्रेजेंट नहीं करे वहाँ पर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स देयर पर्सनल ओपिनियन जो उनको वहाँ लेके गई है, या इट्स देयर पर्सनल हार्ड वर्क। इससे पूरी नेशन नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करें। लेकिन क्लेम तो यही किया जाता है कि जैसे कि आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप इस ऐसी पोस्ट पर जाकर आपको रखा जाता है, बिठाया जाता है, तो आपको नाम तो पीछे पाकिस्तान का ही आएगा ना? वो तो देखें आएगा, जहाँ पे भी एक पाकिस्तान का नाम है वो पाकिस्तान का एक फ़ख्र होते हैं। लाइक मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स गुड टू हेयर के एक स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी है, बट इट डजंट क्रिएट एन इमेज ऑफ पाकिस्तानी के मतलब पाकिस्तान की इमेज कोई बेहतर हो रही है या नहीं। वो इस तरह का आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। मतलब ये आपकी, जब तक आप अपनी खुद स्टेबिलिटी, आप अपने मुल्क के हालात नहीं बेहतर करेंगे, तब तक आपको इसी नज़र से देखा जाएगा। और
इसी तरह रेट किया जाएगा आपको। तो आपको नहीं लगता कि चलें आपने कहा कि पाकिस्तान की इमेज इतनी अच्छी फिर भी पोर्ट्रे नहीं होगी, चाहे पाकिस्तानी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नहीं बने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर हम क्या करें? ऐसा मतलब कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए? इमेज भी हमने खुद खराब किया या हमारे पॉलिटिशियंस ने खराब किया? खुद खराब किया हमने। मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक अमेज़ॉन का बिजनेस स्टार्ट हुआ, लोगों ने 2 नंबरियाँ स्टार्ट कर दी, ये ऑनलाइन ये जो क्रिप्टो का काम शुरू हुआ, लोगों ने माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। जब एक बंदा वहाँ पे कहीं यॉर्कशायर में बैठ के ऑर्डर कर रहा है और पाकिस्तानी बंदे से वो ख़रीद रहा है एक चीज़, उसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, तो इन दी एंड इमेज तो पाकिस्तान का ही ख़राब हुआ है ना सोसाइटी का, कि यहाँ के लोग ही वैसे हैं, लोगों की मेंटालिटी, वो बिज़नेस किसी पॉलिटिशियन के साथ तो नहीं कर रहा। इस तरह फिर इंडियंस की जो मेंटालिटी है या इंडियन का जो टैलेंट है, इस तरह के काम जब वो करते हैं, अमेज़ॉन पे करते हैं, जो आप बता रहे हैं उन पे करते हैं, तो इट मीन्स कि वो अच्छा काम करते हैं, उनकी इमेज अच्छी पोर्ट्रे की जाती है एंड वो मेहनती हैं बहुत ज़्यादा। वो प्रोफेशनल लोग हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इज़ नाउ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कुछ छोटी बात नहीं है, उन्होंने इकनॉमिकली बहुत ग्रोथ की है। उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एंटी मुस्लिम है नहीं है, दैट्स इट्स वेरी सेपरेट थिंग कि हमारे साथ उनका क्या रिलेशन है। लेकिन टू देयर कंट्री दे आर डूइंग वेल। उनकी कंट्री में स्टेबिलिटी भी है, उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन भी बहुत ना होने के बराबर है और वो इकनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। उनके मुल्क में एक सुकून है। यहाँ पे वो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें ही नहीं है। तो आप इसको, पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट होने वाला कंट्री है, डिफ़ॉल्ट होते होते बचा है, IMF के दुनिया के सहारे पे चल रहा है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच रकुपिन, कल हाफिज़।